Hello students, in this video we will learn how to solve a transportation problem by a northwest corner rule. See, northwest corner. See, northwest corner rule is also called as NWCR or NWCM, northwest corner method. See, this method is used to find an initial solution to the transportation problem. Okay, initial solution means a rough estimate to the transportation problem. Okay, see, initial solution means a rough estimate. Once we start working on some project, we always take a rough idea how much cost will be incurred in doing this work, right? So if I am given one transportation problem, I will first find out a rough estimate. Okay, that is called a initial solution, right? So this is the easiest method to find out the initial solution of the transportation problem. So let us take one question and understand the meaning of northwest corner rule, how it is being applied, right, in the question itself. So suppose my question is find an initial solution to the following transportation problem. Transportation problem I am writing as abbreviation called TIP, right? See, the transportation problem will be given in this way, right? So my M1, M2, M3, M4, and here I am having S1, S2, and S3, right? So this is the supply column and this is the demand column. Okay, so these are my destinations. All this is given in the question, and here I am given the sources from where the goods are to be supplied. See, howsoever the question is written in exams, I will tell you how to write down the table first. Okay, so suppose this is the question given to me, right? See, this is the question given to us. First of all, we will understand the meaning of this transportation problem, what is given to us. See, in the first cell, it is being written as 10. What does this 10 signify? This 10 means that when S1 supply goods to M1, then 10 rupees per unit cost of transportation will come. ठीक है, जैसे S1 अगर M2 को 1 unit of goods supply करेगा तो it has to spend 2 rupees per unit, right? तो 10 यूनिट सप्लाई करेगा तो कितने पैसे हो जाएंगे? 2 into 10, that is equal to 20. Likewise others. So these values 10, 2, 20, 11, 12, 7, 9, 20, 4, 14, 16 and 18. These all are cost elements, right? Now see what is the supply. S1 has a total supply of 15 units. क्योंकि S1 के सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे supply के column में 15. तो it means कि S1 has total 15 units to supply. S1 सिर्फ 15 यूनिट हमें मार्केट में दे सकता है, इससे ज्यादा उसके पास है ही नहीं. S2 has 25 units of supply. S3 has 10 units of supply, right? Likewise another देखो, डिमांड के लिए देखिए M1 के नीचे डिमांड कॉलम में लिखा हुआ है 5. It means that M1 has a demand of 5 units altogether. M1 total 5 units सामान मांगेगा मार्केट से. M2 will take 15 units from the market. M3 can take 15 units from the market. वो उसकी मर्जी है, अब वो S1 से ले, S2 से ले या S3 से ले. Similarly, M4 की भी डिमांड 15 यूनिट्स की है, which it can fulfill from either S1, S2 or S3, or some units from S1, some units from S2, some units from S3. Like हमें ये बताना है कि how the goods will be transported from these sources to the destinations such that the total transportation cost is minimized. ठीक है, तो our objective is, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यही ऑब्जेक्टिव होता है. Our objective is to find out
a transportation schedule such that the total transportation cost is minimum. ठीक है, देखो हर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यही ऑब्जेक्टिव होता है, बट इसको करने के लिए हमें सबसे पहले एक इनिशियल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट, ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है, ये हमें एक इनिशियल सॉल्यूशन निकाल के देगा, ये मिनिमम नहीं निकाल के देगा। मिनिमम के लिए हमें, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक और मेथड लगाना पड़ता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। तो अभी हम सिर्फ एक इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल वी विल फाइंड only the initial solution, not the minimum one. Not necessarily कि जो आंसर मेरा निकल रहा है वो मिनिमम ही, ठीक है। अभी सिर्फ मुझे इनिशियल सॉल्यूशन मिलेगा, उसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तब हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिलता है, राइट। तो अब इनिशियल सॉल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा ये देखिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि टोटल डिमांड टोटल सप्लाई के बराबर है कि नहीं, मीन्स द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए टोटल डिमांड निकालो। देखो डिमांड कॉलम का टोटल करते हैं, 5 + 15 + 15 + 15। ओके, तो मेरा कितना आ गया, 15, 45, 50 आ गया, 50 यूनिट्स। सप्लाई कॉलम का टोटल देखो, टोटल सप्लाई कितनी है मेरी, 15 + 25 + 10, तो ये भी बन गया 50। सिंस problem is balanced, right? तो अगर मेरी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है, then only I can use the algorithms of transportation problem. If my problem is not balanced, I cannot use the various algorithms of transportation problem. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती। What I do is, if the problem is unbalanced, then हमें पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। अब प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा प्रोसीजर आगे कि कैसे बैलेंस करते हैं, दैट वी विल केम टू नो इन लेटर लेक्चर्स। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को नोट करना आना चाहिए। देखिए कैसे नोट करना है, मेरे पास है S1 S2 S3 एंड M1 M2 M3 M4। देखिए हम लिखेंगे M1 M2 M3 M4 S1। देखिए थोड़ा खुला खुला टेबल बनाना है आपको, बिकॉज आई हैव टू राइट एवरीथिंग हियर। S1 S2 S3 like this. Okay, see whatever cost elements are given to us, these cost elements we have to write it at the corner of the cell, like here corner of the cell pe we have to write down 10 2 20 11 12 7 9 and 20 4 14 16 and 80, right? This is, we have to write it at the corner of the cell, and here I will be writing down the supply and here I am writing down the demands. See, supply जो भी होगी उसको इन वैल्यू से हट कर लिखना और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये सप्लाई की वैल्यू है या कॉस्ट की वैल्यू है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो मिस्टेक्स होती है बच्चों से वो यही होती है। देखो मैंने ये 5 लिखा है तो बाकी की 10 12 और 4 से हटा के थोड़ा सा लिखा है, सो दैट कि मुझे याद रहे कि ये कॉस्ट एलिमेंट नहीं है, राइट। तो पहले प्रॉब्लम की बैलेंसिंग चेक कर ली, फिर हमने टेबल सेट कर ली, एंड वट एवर इज द नेम ऑफ द मेथड दैट यू आर अप्लाइंग, यू हैव टू राइट इट एट द टॉप ऑफ द टेबल, राइट। बिकॉज अभी तो हमने एक ही मेथड किया है, बट आगे सब्सिक्वेंटली वी हैव टू अप्लाई सो मेनी मेथड्स, तो it is always better to write down on the top of the table that we are using this method here, so that you also know कि मैंने ये टेबल इस मेथड से बनाई है, राइट। अब देखिए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैं इसके अंदर अपना सॉल्यूशन लिख रही हूँ, तो let me change the pen here. Okay, see
अब आ जाइए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का क्या मतलब होता है, फाइंड आउट द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ दिस टेबल। ठीक है, सो माय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज दिस, नॉर्थ मतलब ऊपर और वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड पे, तो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो आई विल ड्रॉ अ सर्कल हेयर, राइट, एंड आई हैव टू राइट डाउन माय सॉल्यूशन इन दिस सर्कल। देखो क्या कैसे निकालना है सॉल्यूशन। M1 के नीचे देखो डिमांड कितनी है 5, एंड इसी सेल के सामने देखो, सामने सप्लाई कितनी है 15। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेल S1, M1, right? We have the demand equal to 5 and supply equal to 15. ठीक है, take the minimum, इन दोनों का मिनिमम ले लो, take the minimum। ठीक है, तो देखो मिनिमम ऑफ 5 and 15 इज 5, तो आपको 5 एलोकेट कर। ठीक है, अब आपने 5 यहां से उठाया ना डिमांड कॉलम से, अगर डिमांड से उठाया ना तो इस पूरे कॉलम को काट दो क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, और इधर बैलेंस माइनस कर दो, 15 माइनस 5 कर दिया, आपके पास 10 आ गया, राइट। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दी एंट्रीज हियर। तो मुझे इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि S1 M1 को 5 यूनिट गुड्स दे देगा। ठीक है, अगर वो 5 यूनिट M1 को देगा तो अब उसके पास कितने गुड्स रह गए हैं उसके गोडाउन में, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, क्योंकि वो टोटल 15 यूनिट सप्लाई कर सकता था, 5 उसने M1 को दे दिए, तो अब उसके पास कितने यूनिट रह गए, 10 यूनिट। ठीक है, और इधर से देखो जरा, M1 को टोटल 5 यूनिट चाहिए थे जो उसने S1 से ले लिए, तो अब वो S2 और S3 से कभी कुछ नहीं लेगा, इसका मतलब यहाँ और यहाँ मेरे पास कभी कोई एंट्री नहीं आएगी, इसलिए मैंने इस पूरी लाइन को अब काट दिया क्योंकि अब यहाँ कोई एंट्री नहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब क्या करें, नेक्स्ट एंट्री करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री के लिए मेरे पास जो बाकी की बची हुई टेबल है उसके अंदर देखो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा बचा, अब मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये, मैं यहाँ पर एंट्री करूंगी, राइट। अब यहाँ पे देखो करने का तरीका वही रहेगा, लुक एट द कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड, इसके सामने सप्लाई देखी 10 और इसके नीचे डिमांड देखी 15, तो 10 और 15 में जो मिनिमम है उसको एलोकेट कर देंगे, तो 10 मिनिमम था तो मैंने 10 एलोकेट कर दिया, यहां से 10 उठाए ना सप्लाई के कॉलम से, तो अब इसको काट दो और नीचे माइनस करके 15 माइनस 10 क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब ये देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, अब इसका मीनिंग ये हुआ कि S1 ने 5 यूनिट M1 को दे दिए और 10 यूनिट M2 को दे दिए, तो उसकी 15 यूनिट की सप्लाई पूरी हो गई, तो अब वो यहाँ पर और यहाँ पर कभी गुड्स नहीं सप्लाई करेगा M3 और M4 को, तो इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आनी थी तो मैंने काट दिया। ठीक है, ऐसे ही अब देखो M2 के पास 15 यूनिट की डिमांड थी, जो उसने 10 तो ले लिया S1 से, अभी 5 और रह रहे हैं, वो किसी से भी ले सकता है, S2 से भी और S3 से भी ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल का फिजिकल मीनिंग आपके सामने आता जा रहा है, राइट। Now come to the another next northwest corner, now it is being 7 here, तो अब 7 के अंदर देखिए आप, डिमांड है 5 और सप्लाई है 25, तो हमारे पास 5 की डिमांड आ गई मिनिमम, क्योंकि हमें एलोकेट करना है, तो 5 हमने यहाँ से ले लिया, 5 जहां से वैल्यू उठाई है वहीं से काट दो। ठीक है, और दूसरी साइड पर माइनस कर दीजिए, राइट। सो दिस इज हाउ द थर्ड एलोकेशन हैज बीन मेड, राइट। Now look for the another northwest corner. This is the northwest corner. Make a circle over here. Find out the minimum of the corresponding demand and supply. इसके नीचे डिमांड देखिए 15, इसके सामने सप्लाई देखा 20, तो जो मिनिमम है उसको एलोकेट कर दिया यहाँ पर, यहाँ से 15 उठाए, 15 माइनस कर दिए एंड टेक द डिफरेंस हियर, राइट। जब तक कि आपके सारे सेल्स एग्जॉस्ट ना हो जाए, यू हैव टू डू दिस प्रोसीजर, राइट। नाउ कम हियर, यहाँ देखो इस वाले सेल के अंदर आएंगे, अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही है। ठीक है, 5 इधर है, 15 इधर है, कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड एंड सप्लाई देखो, इस सेल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई इज 5 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड इज 15, विच एवर इज मिनिमम एलोकेट दैट। ठीक है, सिंस आई हैव टेकन इट फ्रॉम हियर, यू कट इट लाइक दिस, और पूरी रो काटते हैं हमेशा और पूरा कॉलम काटते हैं, कभी आधा नहीं काटना। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर दिया, 10 आ गया। अब दिस इज द ओनली सेल लेफ्ट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई भी 10 होगी और डिमांड भी 10 है। देखो अगर आपने प्रोसीजर बिल्कुल सही लगाया है तो लास्ट की जो भी एंट्री होगी उसमें सप्लाई और डिमांड हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट नहीं बचनी चाहिए, हमारे पास जितना सामान है हमने सारा बेचना है, तो हमारे पास 10 है तो हमने 10 यूनिट्स ले लिए। सपोज कर लीजिए मैंने ये 10 यूनिट सप्लाई से लिए थे, तो यहाँ पे काट दिया, 10 माइनस 10
जीरो आ गया आपके पास, राइट। या आपने कॉलम से भी काट दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा सर्कल जो है, ये सर्कल्स जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर माई आंसर, ये मुझे बता रहे हैं कि कौन किसको कितने यूनिट सप्लाई करेगा, राइट। तो दिस इज हाउ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इज बीइंग अप्लाइड। अब इस आंसर का मीनिंग क्या हुआ, देखो इसको चेक कैसे करें कि ये ठीक आया कि नहीं आया। तो देखिए, जो ये सर्कल्स है इनका टोटल करो, देखो 5 + 10 = 15, 5 + 15 + 5 कितना बना 25, तो मेरी टोटल सप्लाई पूरी हो गई 25। 10 10 कॉलम्स का टोटल लो, सर्कल्स का टोटल करो, वो डिमांड से मिलना चाहिए। कॉलम के अंदर देखो 5, फिर 10 + 5 किया सर्कल्स के अंदर 15, जो कि नीचे वाली डिमांड से मैच हो गया, फिर 15, फिर 5 + 10 15 किया, जो नीचे की डिमांड से मैच हो गया। इसका मतलब जितना सामान था सब बिक गया, जिसको जितनी डिमांड चाहिए थी, जितनी डिमांड थी उसकी डिमांड पूरी हो गई, ठीक है। तो मुझे पता चला कि S1 M1 को 5 यूनिट्स देगा, S1 M2 को 10 यूनिट्स देगा, S2 M2 को 5 यूनिट्स देगा, S2 M3 को 15 यूनिट्स देगा, S2 M4 को 5 यूनिट्स एंड S3 M4 को देगा 10 यूनिट्स, ठीक है। अब इतना करने में उसके पैसे कितने खर्च होंगे ये देखना है। देखिए इधर टोटल कॉस्ट, अभी मैं मिनिमम कॉस्ट नहीं लिख सकती क्योंकि ये रफ एस्टिमेट है, ये टोटल कॉस्ट निकली है। मेरा पैसा इतना खर्च होगा, इससे कम ही खर्च होगा एक्चुअल काम करने में। अभी मुझे अपना एक रफ एस्टिमेट मिला है, देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है, अब ये 10 का क्या मीनिंग था, ये पर यूनिट कॉस्ट ही, S1 M1 को 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट देगा, पे देगा सामान, तो 5 यूनिट सप्लाई करेगा तो कितने हो गए 10 × 5 50, तो 10 × 5, ठीक है, प्लस 2 × 10, ठीक है। कॉस्ट से यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट आ जाती है, 7 × 5 प्लस 9 × 15 प्लस 20 × 5 प्लस 18 × 10, ठीक है। इसका टोटल निकाल लीजिए, दिस इज द कॉस्ट एनकर्ड टू सप्लाई, मेरे ख्याल से ये आ रहा है आपका ₹520। इसका मतलब हुआ कि इस काम को करने में मेरे 520 रुपीज तो खर्च होंगे, ठीक है। हो सकता है इससे कम में भी पॉसिबल, ठीक है, और हो सकता है 520 ही लगे। ये बात हमें पता चलती है जब हम आगे मोदी मेथड इसके ऊपर लगाएंगे, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के काम आता है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। अभी हम सिर्फ इनिशियल सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं, राइट। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए ऑब्जर्वेशंस, देखिए ऑब्जर्वेशंस में क्या आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले कि ये सर्कल्स कितने आएंगे, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सेल्स, जो ये सर्कल्स हैं इनको बोलते हैं बेसिक सेल्स, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सेल्स कितने आएंगे, देखो काउंट करो कितने आए हैं सर्कल, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे पता चलेगा कितने आएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस -1, ठीक है। देखो मेरे पास सोर्सेस कितने थे, S1 S2 S3, तो 3 सोर्सेस थे। डेस्टिनेशन कितने थे, M1 M2 M3 और M4, 4 डेस्टिनेशंस थे। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 3 सोर्सेस 4 डेस्टिनेशन -1, तो 6 आने चाहिए। तो आप देखो क्या आपके सर्कल 6 आए हैं, तो अगर आपके सर्कल 6 ही आए हैं तो इसका मतलब आपने काम सही किया है। रो टोटल और कॉलम टोटल मैच हो जाए तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। ये 2-3 ऑब्जर्वेशन हैं जिसके जरिए आप ये देख पाते हैं कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है कि रो टोटल और कॉलम टोटल आपके बराबर बैठने चाहिए सर्कल के, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये जरूर चेक कीजिए कि जितने सर्कल्स मेरे पास आने चाहिए थे उतने आए हैं कि नहीं आए। तो मैंने देख लिया कि मेरे पास सर्कल 6 आने चाहिए थे, जो 6 आ गए हैं। कई बार ये ऐसा होता है कि सर्कल के अंदर 0 लिखा आ जाता है तो हम उसको काउंट नहीं करते, ठीक है, इसीलिए वर्ड है मैक्सिमम नंबर, ठीक है। अगर आप 0 को काउंट कर लेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन में 6 आ रहा है तो 6 ही सर्कल आएंगे, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते कभी भी, नेवर पॉसिबल। अगर आपके 6 जो ये फॉर्मूले से सर्कल्स आ रहे हैं, अगर इस फॉर्मूले से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब आपने काम गलत किया, ठीक है। अगर इतने ही आते हैं आपके पास तो आपका काम सही है। 0 आ जाए तो हम बोल देते हैं, देखो डी जनरेट सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, एक वर्ड है डी जनरेट सॉल्यूशन, ठीक है। इफ एनी ऑफ द बेसिक सेल इज 0, मतलब सर्कल के अंदर कहीं पर भी 0 लिखा आ जाए तो गलत नहीं है, उसका मतलब है कि 0 यूनिट सप्लाई होंगे, तो हम बोल देते हैं सॉल्यूशन इज डी जनरेट। इफ एनी ऑफ द बेसिक सेल इज 0, एक आ जाए, 2 आ जाए, कितने भी सर्कल 0 आ जाए, एक भी सॉल्यूशन, इफ एक भी अगर सेल आपका 0 आ जाता है देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डी जनरेट,
ठीक है, then this solution is called degenerate. ठीक है, अब in this question none of the basic cell is 0. ठीक है ना, in this question none of the basic cell is 0. This implies none of the basic cell is 0. This solution is non-degenerate. Non-degenerate मतलब कहीं पर भी 0 वैल्यू नहीं आई है, right? This is how we apply the northwest corner rule to any question, right? तो यही सब कॉन्सेप्ट है नॉर्थवेस्ट के अंदर. चलो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. फाइंड द इनिशियल सॉल्यूशन. कई बार इनिशियल सॉल्यूशन की जगह पे वो वर्ड लिख देते हैं स्टार्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है, तो दोनों ही वर्ड करेक्ट है. अलग अलग बुक अलग अलग वर्ड यूज करती है, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग transportation problem. So the question is PQRS supply ABCD. यहाँ पे कॉस्ट वैल्यूज 413. देखो क्वेश्चन में हमेशा वो ऐसे ही वैल्यूज लिख के देंगे. दिस इज यू हैव टू राइट ऑन द प्रॉब्लम जिस तरीके से मैंने आपको सिखाई है कि कॉर्नर के ऊपर आपको नॉन कॉस्ट सेल्स लिखने हैं, वो आप खुद लिखेंगे. ठीक है, ये देखो 50, 70, 30, 50. ये है आपकी डिमांड. अच्छा, डिमांड इस साइड लिखते हैं, सप्लाई की साइड, और सप्लाई को डिमांड की साइड लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सोर्सेस कहीं हो, डेस्टिनेशन कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, राइट? तो सबसे पहली कंडीशन जो आप चेक करेंगे दैट इज ऑलवेज वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट. सो टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई जरूर चेक करना है सबसे पहले. अगर यही चीज चेक नहीं करी तो आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अगर बराबर नहीं हुआ तो टोटल डिमांड मेरी कितनी हो गई? 40 plus 35 plus 105 plus 20. So this comes out to be 200. And total supply भी निकाल लेते हैं. Total supply is 50 plus 70 plus 30 plus 50. अभी परेशान मत हो इस बात को सोच के कि मैडम अगर टोटल डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हुए तो क्या करना है. I will let you know in the subsequent lectures. अगर ये बराबर नहीं हो गई तो कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको. ठीक है, अभी हम क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी पहले जनरल केस करेंगे. ठीक है, तो टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई. Therefore my problem is balanced, right? अगर मेरी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो I can proceed. Northwest corner can be applied on it. अनबैलेंस्ड होगी तो पहले बैलेंस करनी पड़ती है. ठीक है, चलिए अब हम अप्लाई करते हैं. तो सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम लिखनी सिखाई है, यू हैव टू राइट डाउन इन द सिमिलर वे. सो PQRS थोड़ा खुला खुला बनाए. थोड़ा सा इतना देख लें कि कॉपी की 2 लाइनों में आपका एक सेल बन रहा हो, क्योंकि सारा आंसर इसी में लिखना है. अगर छोटी छोटी टेबल बनाओगे तो गलती के चांसेस है. ठीक है, लाइक दिस A B C and D. 4, 13, 14 and 9, 6, 11, 14, 4 is 6, 11, 4 and is 11 here, 8, 10, 10 and 13, 13, 8, 13 and 8, right? चलिए ये सप्लाई मेरी इधर है and my demand is over here, right? तो अब मैंने कहा था डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज थोड़ी हटकर लिखनी है बाकी सबसे बड़ी बड़ी, ताकि गलती ना हो, राइट? 50, 70. केयरफुली ऑब्जर्व कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को लिखती हूँ, राइट? चलिए अब वही काम करेंगे. पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ढूंढेंगे, कॉर्नर ढूंढेंगे. दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो पहली एंट्री यहीं आएगी. सोचिए क्या आएगी. देखो P के नीचे डिमांड दे रखी है 40 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो है 50 की. तो जो मिनिमम है उसको एलोकेट कर दिया, यहां से मिनिमम उठाया, इसको काट दिया, टेक द डिफरेंस ऑन द अदर साइड, राइट? दिस इज हाउ द फर्स्ट एलोकेशन हैज टू बी मेड. कम टू द सेकंड वन.
सेकंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लिखा हमने, वो ये है, सर्कल बना लिया। यहाँ पे देखिए मिनिमम 35 और इधर 10, 35 और 10 का मिनिमम हुआ 10, तो 10 मैंने यहाँ से लिए, यहाँ से उठाए थे 10, तो इसको काट दिया एंड टेक द डिफरेंस ऑन द अदर साइड, राइट। अब सोचो खुद यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, इसके अंदर देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 25 एंड 70, सो 25 इधर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, राइट, और 25 यहाँ से उठाए थे, सॉरी 25 यहाँ से उठाए हैं, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, राइट। नाउ कम हियर, जस्ट सी हियर, अब नेट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, तो हियर इट इज 45 एंड हियर इट इज 105, so I take 45 as the minimum. Since I have taken 45 from this row side, I will cross this row and take the difference on the other side, right? Now come to the next cell. Here it is minimum, देखिए इसका, इसके corresponding supply is 30 and the demand is 60, 30 and 60, minimum is 30, so I take 30 from here and take the difference, right? Now come here, next cell में देखिए, इसके नीचे 30 की डिमांड है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई है 50 की, तो जो मिनिमम है मैंने उसको ले लिया एंड क्रॉस दिस, बिकॉज मैंने यहाँ से 30 ले लिए हैं, अब मेरे पास 20 बचे हैं, तो मैं यहाँ आ गई। अब देखिए यहाँ पे लास्ट सेल है, लास्ट सेल में हमेशा सप्लाई और डिमांड की वैल्यू बराबर रहेगी, ठीक है। 20 आपने कहीं से भी उठा सकते हो आप, 20 आपने अगर रो साइड से उठाए हैं तो कॉलम साइड पे 0 हो जाएगा, कॉलम साइड से उठाए हैं तो रो साइड पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम देखना चाहते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, सर्कल्स का टोटल करो, देखो रो वाइज कर रही हूँ, 40 + 10 50, तो मेरी सप्लाई हो गई 50 की पूरी। नेक्स्ट देखिए 25 + 45 मेरा आ गया 70, 30, फोर्थ रो का टोटल देखो 30 + 20 50, कॉलम वाइज देखिए 40, 10 + 25 35 आ गया, 45 + 30 + 30 it becomes 105 and 20, so row total and column total matches here, so it means that my answer is correct. एक बारी नंबर ऑफ सेल्स भी गिन लेते हैं कितने आने चाहिए, देखो नंबर ऑफ बेसिक सेल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ सोर्सेस प्लस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस -1, तो यहाँ पर मेरे सोर्सेज हैं A B C D, 4 सोर्स हो गए, ठीक है। डेस्टिनेशन हैं PQRS, 4 डेस्टिनेशन है -1, तो 7 सेल्स आने चाहिए। अब गिनो कितने सेल आए हैं, कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स आए हैं, मेरा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। और देखो नन ऑफ द बेसिक सेल इज 0, देखो इसकी जरूरत नहीं होती, अगर क्वेश्चन में पूछें कि इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट तभी लिखना है, वरना नहीं। नन ऑफ द बेसिक सेल इज 0, इट इम्प्लाइज द सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। मैं इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि बच्चों को डेफिनेशन लर्न हो जाए, मीनिंग याद हो जाए, ठीक है। तो नन ऑफ द सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट है, क्योंकि सारे सेल्स मेरे ग्रेटर देन 0 आए हैं, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता सेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए आपके पास कॉस्ट जरूर निकालनी है, अगर उन्होंने आपको बोला है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाइए, तो मांगे चाहे ना मांगे आपको कॉस्ट जरूर निकालनी है। कॉस्ट निकालने का तरीका यही है, कॉस्ट से सेल को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 40, तो 4 × 40 प्लस देखो 6 × 10 11 × 25, 6 × 10 11 × 25 प्लस, ठीक है, 10 × 45 10 × 30 10 × 45 10 × 30 प्लस 13 × 30 13 × 30 8 × 20, so this is the cost incurred here, ये आ जाएगा आपका ₹1795, so this is the cost that is being incurred, ठीक है। इससे मिनिमम भी, इससे और छोटी कॉस्ट भी आ सकती है, उसके लिए हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ता है, अभी हमने इतना ही सीखा है तो हम इतना ही करेंगे, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल इज बीइंग अप्लाइड। अब मैं आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दे रही हूँ करने के लिए, थोड़े से क्वेश्चंस खुद ट्राई करना, राइट। देखिए क्वेश्चन यही होगा, फाइंड इनिशियल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी लिख देते हैं वो क्वेश्चन कई बार बॉक्स के अंदर, 1 3 4 2 3 2 3 2 5
419 और यहाँ पे वैल्यूज देखो, अगर क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो तो इट इज अंडरस्टूड कि ये जो वैल्यूज बाहर लिखी हैं ये सप्लाई या डिमांड की वैल्यूज हैं, ठीक है। और जो अभी अपने आप अंडरस्टूड है कि ये जो रो साइड पे लिखे हैं ये सोर्सेज हैं, ऊपर वाले डेस्टिनेशन हैं, ठीक है। तो इट इज मतलब क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है तो वो किसी भी तरीके से आपको लिख के दे देते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आपका आएगा 310, ठीक है। अच्छा बच्चों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कई बार टाई हो जाए, मान लीजिए, तो टाई अगर हो जाता है तो आप किसी को भी एलोकेट कर दीजिए, मान लीजिए 30 और 30 आ गए दोनों साइड पे, तो किसी का भी मिनिमम लेंगे तो 30 रहेगा, तो आप कहीं से भी 30 उठा लो, दूसरी साइड पे 0 कर दो, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें होगा, टाई को ब्रेक कर सकते हैं आप आर्बिट्रेरीली। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि आंसर मेरा और आपका मैच ना करे, दो बच्चों का अलग अलग आंसर आ जाए, तो दोनों के आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि मिनिमम आंसर तो हमें मोदी मेथड से मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मिनिमम आंसर होता है वो बराबर होता है, रफ एस्टिमेट कुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो, फाइंड दूसरा क्वेश्चन में इनिशियल सॉल्यूशन ही फाइंड करना। ये देखो 02221415367 अच्छा 5510 5510, ठीक है। इसका सॉल्यूशन 42, ठीक है। चलिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराती हूँ काम, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हियर, दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।